Hello students, how are you? Students, welcome to your own channel Rajesh Srivastav Maths. As you know, today student we are going to start a very difficult chapter of class 10th ICSC GST. Actually, we have discussed its concept and some problems in my first video. Today I am going to start my second video. I took some difficult topics, difficult questions from the chapter test of ML Agrawal ICSC book. Please notice this. The questions are so lengthy and solutions are also very lengthy, and this chapter is very important for the board examination. Please see, the question is very lengthy, and I think answer will be very lengthy, but it will just give you the good marks if you understand it. Please see. A shopkeeper bought a washing machine at a discount of 20% from the wholesaler, the printed price of washing machine being rupees 18,000. The shopkeeper sells it to a consumer at a discount of 10% on the printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the price inclusive of tax under GST at which the shopkeeper bought the machine and the price which consumer pays for the machine and the tax under GST paid by the wholesaler to the state government, the tax under GST paid by the shopkeeper to the state government, and the last one is the tax received by the central government. Students, I told you earlier, आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी एक चेन, और उस चेन में कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं वो आपको शो करने होते हैं, और आपको हर दो पर्सन के बीच में जो मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट है, जीएसटी रेट है, वो सब दिखाना पड़ेगा. एक बात और मैंने बताई होगी आपको कि सेल्स जो हैं दो तरह के हैं. आप एक कोर्स में एक इंट्रा और एक इंटर. तो यहाँ पे लिखा है इंट्रा. इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट, यानी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप वो स्टेट के अंदर ही आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट. और इसमें जो जीएसटी होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी. नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. प्लीज सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द चेन. A shopkeeper bought a washing machine at a discount of 20% from the wholesaler. So wholesaler is the first person. Now he is selling to shopkeeper, and printed price is machine is given rupees 18,000. So right here rupees 18,000. Okay, and discount also giving 20%. So discount is how much? 20%. Now next one is I am reading the shopkeeper sells it to the consumer. Shopkeeper is selling to the consumer. Now next person is the consumer, and add on the printed price. So again you write the printed price here is given to you. The same one, and discount also given by him. Now discount here how much? 10%. You can see. And afterward, if the sales are intrastate and the rate of GST is 12%. So I told you that when the GST is 12%, it means you will suppose CGST is 6% and SGST is 6%. This one please notice. For intrastate we must मेक इट हाफ. जीएसटी को भी हम आधा कर लेंगे. 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी लगाते हैं. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है. दिस इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट. ओके. और कुछ क्या दिया हुआ है और हमने लिख लिया है मैंने यहाँ पर. तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, हम लोग हर एक पर्सन के लिए हम अलग अलग इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी. एक बात का ख्याल रखना है बच्चों, आपको जो फर्स्ट पर्सन डब्ल्यू होता है वही उस डब्ल्यू के लिए टैक्स निकाला जाता है, वही उसका सीजीएसटी एसजीएसटी होता है. लेकिन शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर इज द मिडिल पर्सन, और इसके लिए क्या से निकालते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड को डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है. और कंज्यूमर जो हमारा लास्ट पर्सन है, ही हैज टू पे ऑल द टैक्सेस. दैट्स व्हाई ही इज पेइंग द मैक्सिमम कॉस्ट फॉर द आर्टिकल. Let us start for W. तो first person is W. For W मतलब W, how much W is paying. तो W के देखिए
हमने लिखा W के लिए CGST कितना हो गया 18,000 इंटू, पहले हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है। लेट अस फाइंड द डिस्काउंट फर्स्ट, बिकॉज CGST इसके बाद लगता है। तो डिस्काउंट 20% है। यू विल फाइंड आउट द अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कितना उसके पास बचा। तो ये आपका हो जाएगा 18,000 का 1 माइनस का 20/100, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1/5। तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू ये हो जाएगा 4/5, तो ये 5 से कट गया, 5 से 15, 5 से 30, 0 0, this is coming 14400, this is coming the amount which is left after discount. Okay, now next step is find out the CGST. तो CGST for the wholesaler, for wholesaler, तो will be 14400 इंटू 6/100, क्योंकि 6% उसका CGST है, 2 0 कैंसिल हो गए, तो कितना आएगा 6 4 24, 6 4 24, 26 और ये आएगा 864। तो स्टूडेंट्स SGST भी सेम होगा, कोई जरूरत नहीं निकालने की, इट विल बी अगेन 864। प्लीज सी द वर्किंग, ये मेरा W के लिए आ चुका है। ओके स्टूडेंट, नाउ द हु इज द नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन हमारा शॉपकीपर है। अब आता है फॉर शॉपकीपर, फॉर शॉपकीपर, ये क्या था हमारा फॉर W था। अब शॉपकीपर जो पर्सन है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है और शॉपकीपर जो है होलसेलर को पे कर रहा है। तो शॉपकीपर कैसे करेगा, शॉपकीपर पहले हम निकालेंगे कंज्यूमर को इतना, उसने कितना कॉस्ट में वो आर्टिकल सेल किया। तो यहां पे डिस्काउंट आपका 10% है, तो लिख लेते हैं अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट, तो ये आपका हो जा रहा है 18,000 इंटू 1 माइनस का 10/100, क्योंकि यहां पे 10% डिस्काउंट है, तो ये मेरा आ गया 18,000 इंटू आ गया 9/10, तो ये बच्चों कितना आ गया 18 9 जा कितना होता है 162, तो ये हमारा आ गया 16200। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल फाइंड आउट द CGST for the shopkeeper. Let us see. Let us see the how can we find out the things. We have to discuss it. Amount left after discount for the shopkeeper is this one coming. So CGST for shopkeeper will be tax charge minus tax paid. So tax charge means shopkeeper is taking the tax from consumer and paying to the wholesaler. तो कितना ही टैक्स ले रहा है, दिस अमाउंट वॉज लेफ्ट, तो 16200 इंटू 6% माइनस ये कितना बच्चों आया था हमारा 864, वी कैन राइट हियर 864, तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 7 और ये हो गया हमारा 6 6 और ये हो गया 9, 864, 12 में से 4 गया 8 और यहां बचा आपका 0 और ये बचा 1, रुपीज 108, दिस इज कमिंग फॉर द CGST for shopkeeper. And do you know SGST is also how much? Same.
this one. Okay, now we will calculate all our answers one by one. So please see, what is our first answer? First answer is the price inclusive of tax under GST at which the shopkeeper bought the machine. तो शॉपकीपर ने होलसेलर से मशीन कितने पे खरीदी? तो देखिए शॉपकीपर ने पहली बात तो ये अमाउंट दिया होगा, जो अमाउंट बचा आपका डिस्काउंट, तो ये लिख लीजिए आप लोग 14400। और शॉपकीपर ने क्या दिया है? शॉपकीपर ने ये दिया है CGST और SGST, तो 864 को आप 2 बार लिख दीजिए, तो कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर ये 448 आ गया, और 6 और 6 कितना आ गया? 12 आ गया, और आ गया 12 ये होगा 9 और 8 कितना? 17 और 4 कितना होता है? 21 होता है। 2 बचा, और 2 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये हो गया 1। फिर से चेक कर लेते हैं। 4 और 4 हो गया 8, 6 और 6 हो गया आपका 12, 1 कैरी, 9 और 8 हो गया 7, 8 और 9 हो गया, 9 और 8 17, 17 4 21 हो गया, 2 कैरी, 2 और 4 6 हो गया, और लास्ट में यहाँ पे आया 1 6 1 2 8। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड आंसर कह रहा है द प्राइस विच कंज्यूमर पेज फॉर द मशीन। कंज्यूमर ने कितना उसको दिया? तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर ने एक तो ये दिया है, शॉपकीपर ने जो डिस्काउंट उसको दिया था, एक तो कंज्यूमर ने ये दिया है, और कंज्यूमर हैज टू पे ऑल द टैक्सेस। तो कंज्यूमर ने ये भी दिया है, ये भी दिया है, और ये दोनों दिए हैं। तो यानी ये हो गया 864 108 और 108। तो ये कितना आ गया? 16200, ये आ गया 972 और 972। तो कितने बच्चों आ गया? 2 और 2 4 हो गया, 7 7 14 हो गया। ओके, 9 और 10 10 और 19 19 और 2 21, और 6 और 2 8, और ये आपका लास्ट में हो गया 18144। लेट अस चेक वंस अगेन। 2 और 2 हो गया 4, और 7 7 हो गया 14, 9 और 9 18, और 19 19 और 2 21, और 21 और 2 कैरी हो गया, 2 और 6 हो गया 8, और लास्ट में हो गया 1। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। और थर्ड आंसर क्या बोल रहा है बच्चों? टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना दिया स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए निकाला हुआ है ₹864। दिस इज योर थर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट इज द फोर्थ वन, इज द हाउ टू फाइंड द फोर्थ वन। यू कैन सी द फोर्थ one is the tax paid by the wholesaler to the state government पर शॉपकीपर ने कितना दिया होगा? 108। यू कैन सी एवरी आंसर इज वेरी इजी। और लास्ट वन इज क्या दिया हुआ है? द टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना पूरा टैक्स लिया हर एक आदमी से? तो कितना टैक्स लिया होगा? एक तो ये लिया है, और एक लिया है 108, यानी एक ये लिया था बाय द होलसेलर, और ये लिया था बाय द शॉपकीपर। तो कितना है बच्चों? ये 972। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर निकल जाते हैं। यू कैन सी इट्स इज नॉट सो डिफिकल्ट। तो प्लीज सी द ऑल वर्किंग ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट दस यू हैव सीन, आप देखोगे यहाँ पर कि अगर आपने चेन बना ली कि एक चेन में कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, और आप उनके बीच में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप लिख लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। आपको इतना याद रखना है, कुछ बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका W, जो फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए जो भी टैक्स निकालेंगे वही उसका GST और GST निकल आएगा, उसको CGST SGST में हाफ अप कर देंगे। लेकिन जो शॉपकीपर जो कि मिडिल पर्सन होता है, वो हमेशा क्या करता है, उसका कैसे नहीं निकालते हैं GST, उसको निकालने के लिए हम टैक्स चार्ज और टैक्स पेड को माइनस करते हैं, जो कि हमने किया है। और जो कंज्यूमर है, उसको लास्ट पर्सन है, उसको जितने भी टैक्स ये देगा उसको सारे देने पड़ेंगे, इसीलिए कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो प्लीज़ सी द वर्किंग। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब निकाल लेते हैं।
हर पर्सन के लिए जीएसटी और सीजीएसटी जो भी निकालना होता है, और बाद में सारे आंसर्स आपके देखिए स्मूथली निकल जाते हैं। तो क्वेश्चन, लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। Mukherjee purchased a movie camera for rupees 25,488 rupees, which includes the 10% rebate on the list price and 18% under GST on the remaining price. Find out the market price of the camera. Student, listen, in this question there are only two persons. यहाँ पर दो ही पर्सन है, एक तो शॉपकीपर है और एक आपका कस्टमर है। जब कभी भी शॉपकीपर और कस्टमर दो ही पर्सन क्वेश्चन में रहते हैं तो वहाँ पे हमको CGST और SGST निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ GST निकाल देंगे, यानी 18% को लेके चलेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हम CGST SGST आधा करेंगे भी तो बाद में हमको दोनों को प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉपकीपर वो पूरा का पूरा टैक्स जो होता है वो कंज्यूमर से ले ही लेता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ देखिए तो MP पता ही नहीं है, तो जो MP पे ही सबको टैक्स भी लगता है और डिस्काउंट भी लगता है, तो पहले हमको MP लेट करना पड़ेगा। प्लीज सी, लेट मार्केट प्राइस ऑफ कैमरा, ये हमने क्या मान लिया, ₹X, करेक्ट है। तो पहले इसमें रिबेट मिल रही, रिबेट का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्काउंट। तो हम लिख देंगे यहां पर अमाउंट ऑफ कैमरा आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू 1 माइनस 10/100, तो ये हमारा आ गया 9x/10, isn't it? अब आता है इस पे लगने वाला है टैक्स, तो लिख देते हैं यहां पर अमाउंट ऑफ कैमरा आफ्टर GST। तो 9x/10 तो था ही उसका प्राइस, इसमें हम क्या करेंगे, GST लगा देंगे 1 + 18/100। रिमेंबर, इसमें 18 का आधा नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमें दो ही पर्सन के बीच में डीलिंग हो रही है। तो ये मेरा हो गया 9x/10 इंटू 118/100, isn't it? क्लियर है ये बच्चों? तो ये अब आता है कि कस्टमर ने कितना प्राइस दिया है, कस्टमर ने ये प्राइस दिया, यानी दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x/10 इंटू 118/100 इज इक्वल टू 25,488। अब हम यहां से निकालेंगे x, तो 25,488 इंटू 1000 अपॉन 9 इंटू 118, isn't it? तो इसको हम क्या करते हैं, 9 से कट कर देते हैं पूरा, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 से 9 2 जा आ जाएगा 18, यहाँ 7 बचा, यहाँ जाएगा 9 8 जा 72, और यहाँ बचा 2 9 3 जा और 9 2 जा। ओके स्टूडेंट, अब ये करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये हमारा पूरा कट जाएगा 24 से, तो हमारा आएगा 24,000 रुपीज। यानी वो कैमरा जो था उसका मार्केट प्राइस कितना था बच्चों, 24,000। प्लीज सी द वर्किंग। कैमरे का हमने पहले MP लेट कर दिया, अमाउंट ऑफ कैमरा हमने डिस्काउंट के बाद क्या था वो निकाल लिया, कैमरे का अमाउंट निकाल लिया, आफ्टर GST निकाल लिया, और वही अमाउंट हमको दिया हुआ था। वी विल कंपेयर इट and get our answer, student. Okay student, now see the next question. Now see the question number 3. It is also a lengthy question. The market price of an article is ₹7,500. A shopkeeper buys the article from the wholesaler at some discount and sells it to the consumer at the market price. The sales are interstate and GST is 12%. If the shopkeeper pays ₹90 as a tax under GST to the state government, find the amount of discount and the price inclusive of tax under GST of the article which the shopkeeper paid to the wholesaler. Please see this student. Again you can find out there are 2-3 persons, so please make the chain
and write all information you can see in the question. Okay student, let's see. Let's write the information. तो इंफॉर्मेशन क्या दी है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग. An MP of the article is this: a shopkeeper buys the article from the wholesaler. So first person is wholesaler, second person is shopkeeper, and third person is consumer. Now there are 3 person in the chain. MP is given rupees 7,500. It is given. And also shopkeeper buys the article from the wholesaler at some discount. Discount is not given. Let discount is D%. Okay. And the next one is the shopkeeper sells to consumer at the market price. So that means shopkeeper again he sells at rupees 7,500 and there is no discount, only the GST is there. So GST is given here, how much? 12%, which means CGST is equal to 6%. SGST is also 6% because it is intra-state sales. So now let us start from here. तो देखिए बच्चों, होलसेलर के लिए निकालेंगे तो डिस्काउंट पर निकालेंगे. तो फॉर W, ओके, W के लिए निकालेंगे अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि पहले आपका डिस्काउंट के बाद बचता क्या है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट यू हैव टू फाइंड आउट. तो ये आपको दिया है 7,500, 1 माइनस का D by 100. दिस इज कमिंग 7,500, 100 माइनस का D अपॉन 100. दो जीरो कैंसिल हो गए तो ये आया 7,500 माइनस का D. दिस इज कमिंग अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट. नाउ द टैक्स गिवन 6%, तो CGST will be 7,500 minus का D into 6%. Okay student, तो 25, 3 जा 25, 4 जा, this will be 2, 2 जा और 2, 3 जा, तो 3 जा 9 into 100 minus D upon 2. This is coming, and also you know SGST is also same, will be 9 by 2, 100 minus का D. Both are same as you know. Now for the shopkeeper, as you know, shopkeeper is the middle person. He will take the charge from the C and will give to the W. तो आप निकालोगे इसका CGST जो होगा वो होगा टैक्स चार्ज माइनस tax paid. So how much he is taking the tax from the consumer? तो it is given 7,500 का निकालेंगे 6% और माइनस टैक्स कितना पे किया है, ऑलरेडी भी है पाउंड ईयर 9/2, 100 माइनस का D हम निकाल चुके हैं. ये हमारा कैंसिल हो गया तो ये हमारा कितना आया 30, तो 42 और ये हो गया 450 माइनस का 9/2, 100 माइनस का D. एंड स्टूडेंट SGST is also same, no need to find again, it is coming the same value. Now the according to question, it is also given to shopkeeper pays 90 rupees as a tax to the state government. यानी कि ये जो अमाउंट आया है ये शॉपकीपर दे रहा है, यानी इट मींस वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी कैन राइट 90 is equal to 450 minus 9/2, 100 minus का D. Now please solve it. This is coming minus it is coming 360 is equal to minus का 9/2, 100 minus का D. Cancel, or this will be 720 upon 9 is equal to 100 minus का D. This is coming 80. Now finally D is coming how much? 20%. So discount is coming how much? 20%.
Now question is the amount of discount. So what is the amount? The first part is amount of discount. So discount percent is given, amount is the amount. So it was the given amount is this one. So discount you can find out 7500 into 20 by 100. 1 by 5, this is coming 1500. This would be your first answer. That means this amount will be given as a discount to the shopkeeper. And the second one is how much the price inclusive of the tax under GST of the article which shopkeeper paid to the wholesaler. शॉपकीपर ने कितना प्राइस दिया होलसेलर को सब कुछ मिला के, टैक्स मिला के. तो शॉपकीपर ने क्या दिया बच्चों? शॉपकीपर ने एक तो ये दिया है, शॉपकीपर ने एक तो ये दिया हुआ है, और क्या दिया बच्चों शॉपकीपर ने? ये दोनों दिया है, CGST SGST. यानी कि 9/2 100 माइनस का D को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये दोनों प्लस करना पड़ेगा हमको, ये CGST और SGST दोनों प्लस करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको. दिस कमिंग 7500 प्लस 9 इंटू, और ये कितना 100 माइनस 10 कितना 20 कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 80. तो ये आएगा हमारा 7500, और ये हमारा कितना आएगा बच्चों? 720. दिस विल कम 0 2 और आएगा 2 और आएगा 8, बिकॉज वी विल एड इट. 0 आया, 2 आया, 7 और 5 12 आया, और ये आया हमारा 8. दिस अमाउंट विल बी गिवन बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर, क्योंकि यही पूछा है हमारा कि शॉपकीपर ने कितना दिया है. तो शॉपकीपर एक तो ये दे देगा जो अमाउंट उसको मिला होगा. शॉपकीपर विल शॉपकीपर पेड फॉर द होलसेलर. ओके, शॉपकीपर इज गिविंग दिस मच अमाउंट. शॉपकीपर इज गिविंग this we will take. Okay, we have to remove this. The shopkeeper is giving this one 7500. This one is coming, he will find it again. Shopkeeper is this one giving 7500 minus D plus how much? This one is coming 9/2 100 minus D into 2. So this is coming 75 into 20. You will subtract, it will come 8 plus, or through to cancel, it will come in 9 into 80. So this is coming 0 6000 plus 720. 0 2 7 6. This will be coming for the amount which the shopkeeper will pay to the wholesaler. Please see this one, this amount, because wholesaler is giving the discount to him, तो हमें ये लेना पड़ेगा. हमने ये ले लिया. इसमें D कितना आया था बच्चों? 20 आया था. 20 रख देंगे तो आएगा 80. इसको इंटू कर दिया, और ये हमारा CGST, ये हमारा SGST है. यहाँ हमने इस 2 से इंटू कर दिया क्योंकि दोनों को प्लस करना था, और D के 20 रख दिया हम लोगों ने, तो ये हमारा 80 आया. 89 जा कितना होता है? 720 प्लस कर देंगे. दिस इज कमिंग. ओके स्टूडेंट, तो प्लीज मेक द चेंज एंड मेक श्योर you are going to do the correct thing. Okay student, see the last question for today. Student, this is our today's last question. So I will conclude my video after this. Let us discuss the question. This is also very important question. A retailer buys an article at a discount of 15% on the printed price from the wholesaler. He marks up the price by 10% on the printed price, but due to competition in the market, he allows a discount of 5% on the market price to the buyer.
if the GST is 12% and the buyer pays rupees 468.16 rupees for the article inclusive of tax, under GST find the printed price of the article and the profit percent of the retailer. This question is very important for the board exam. देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें भी आपके पास 3 पर्सन है, एक तो होलसेलर है, एक रिटेलर है और एक हमारा बायर है यानी कंज्यूमर है। तो यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस हमें मिसिंग है जो पूछा गया है। हर क्वेश्चन में प्रिंटेड प्राइस देते हैं लेकिन बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन, तो वी विल सपोज इट इज x रुपीज। लेट अस मेक द चेन स्टूडेंट। तो चेन विल बी लाइक दिस, W, the first person is W, second person will be R, third person will be consumer. Okay student, now student listen, let the printed price of the article be how much? X. So you will write here rupees X will be the printed price for which the wholesaler is giving to the retailer. फिर क्या लिखा है देखते बच्चों, 15% डिस्काउंट है। वी विल राइट हियर डिस्काउंट इज इक्वल टू हाउ मच? 15%। अब आगे बढ़ते हैं, ही मार्क्स अप द प्राइस बाय 10%, यानी जो रिटेलर है उसने क्या किया, मार्क्स को बढ़ा दिया। तो मार्क्स अप प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, x इंटू 1 प्लस 10/100, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 110 x/100। ये जानते ये आ जाएगा मार्क्ड अप प्राइस जो कि हमारा रिटेलर ने बढ़ा के लिया है बायर से, लेकिन वो डिस्काउंट भी दे रहा है। प्लीज सी डिस्काउंट ही इज गिविंग बिकॉज मार्केट में कंपटीशन आ गया। तो डिस्काउंट, व्हाट डिस्काउंट इज गिवन टू बाय हिम, इट इज 5%। ओके स्टूडेंट। और लास्ट में जो बायर है वो कितना रुपीस दे रहा है, ये अमाउंट दे रहा है टोटल, तो यानी इसका प्राइस दिया है 468.16 रुपीज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। लेट्स सी द क्वेश्चन, प्लीज सी द होल क्वेश्चन, रीड इट प्रॉपरली। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डिस्काउंट फॉर डब्ल्यू, कितना डिस्काउंट के बाद कितना रुपीस बचा। और एक चीज यहाँ पर जीएसटी आपको 12% दिया है, इसका मतलब हो गया कि सी जीएसटी आपका 6% है और एस जीएसटी भी कितना है बच्चों, 6%। स्टार्ट करते हैं फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू की बात करते हैं तो डब्ल्यू हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद कितना बच रहा है वो हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस का 15/100 जो कि हमारा आएगा 85x/100, यानी इसे कट करेंगे तो आएगा 17/20। दैट मीन्स इट इज कमिंग 17x/20। फिर निकालेंगे इसका CGST। CGST is coming 17x/20 का करेंगे बच्चों कितना, 6%। तो ये आएगा 102x आएगा कितना, 2000, isn't it? और SGST भी इतना ही होगा, we can write 102x/2000। अब आता है फॉर रिटेलर। फॉर रिटेलर तो पहले हम निकालेंगे इसका मार्क्ड अप प्राइस। मार्क्ड अप प्राइस यानी किसने कितना प्राइस बढ़ाया है, तो इसने क्या किया है, x का 10% बढ़ा दिया, तो आया 110x/100। तो ये हमारा बच्चों कितना आया, 11x/10। देखिए लिखा था यहाँ ही मार्क्स ऑफ द, ये हमारा 11x/10 आ गया। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट लेफ्ट, तो 11x/10 का हम निकालेंगे 1 माइनस
डिस्काउंट क्या दे रहा है वो 5%। तो 11x अपॉन 10 ये आ जाएगा हमारा 95 अपॉन 100। ओके स्टूडेंट, तो ये काट दिया मैंने तो कितना आ गया, ये आ गया 19 और ये आ गया 20। 19 और 20 29 अपॉन कितना आ गया 200x, ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ रिटेलर जो है मतलब मिडिल पर्सन है, तो इसके लिए जब निकालेंगे CGST तो ये आएगा टैक्स चार्ज माइनस टैक्स पेड, यानी क्या करेगा, इससे टैक्स लेगा इसको टैक्स देगा। तो 209x अपॉन 200 का 6% निकाल देते हैं माइनस टैक्स पेड, कितना टैक्स दिया है उसने, टैक्स दिया है ये 102x अपॉन 2000, इजंट इट। तो ये हमारा कितना आ रहा है, इसे करते हैं तो 6 9 जा कितना होता है 54, 5 6 2 जा 12, x अपॉन कितने जीरो आ गए 4 जीरो, और ये कितना है, ये आपका है 102x अपॉन 2000। तो एलसीएम कितना बच्चों आया 20,000, ये आया 1254x और 1020x। अब इसे करते हैं तो आता है 4 और 5 में से 2 गया आएगा 3 और ये आएगा 234x अपॉन दिस इज कमिंग CGST। ओके, और SGST भी इतना ही आएगा 234x अपॉन 20,000। तो दिस वन आई हैव फाउंड। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहता है, द बायर, इक्वेशन हमको यहां से मिलेगी, द बायर पेज ₹468.16। अब क्वेश्चन आता है कि जो बायर है वो कितना अमाउंट दे रहा है, ये अमाउंट दे रहा है, तो ये अमाउंट किसके इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, बायर तो किससे ले रहा है, आर से ले रहा है, और बायर ने यहां पर देखेंगे तो एक तो अमाउंट डिस्काउंट, एक तो बायर ने ये दिया है और प्लस बायर ने ये भी टैक्स दिया, ये भी टैक्स दिया है, ये भी टैक्स दिया, ये भी टैक्स दिया है। तो क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा बायर का निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, let's do this one. So we will write the buyer's price. Buyer's price कितना है 468.16। तो देखिए ये अमाउंट प्लस करिए 209x अपॉन 200, एक तो ये अमाउंट बायर ने दिया है प्लस उसने सारे टैक्स दिए हैं, तो 234x अपॉन कितना 20,000 को 2 से इंटू कर दें, क्योंकि ये दोनों ही प्लस करना पड़ेगा। फिर इसको ऐसे इसको भी करेंगे 102 अपॉन करेंगे यहाँ पे 2000, यहाँ पर भी हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं। ये जो अमाउंट आएगा ये हमारा होगा 468.16 के बराबर, इजंट इट। अब बताइए बच्चों इसमें क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा इसमें 20,000। तो यहाँ पे 2 0 काट के 2 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20900x और यहाँ पे 234x, इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4x, और ये भी हमारा यहाँ पे देखिए एक 0 बच रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, एक 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 468.16, इजंट इट। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमको x निकालना है, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आएगा देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट डिजिट आई 8, ये हमारा 8 आ गया, ये 4 और 6 होता है 10, ये 10 आ गया, कैरी हो गया हमारा 1, ये हो गया 1 और ये हो गया हमारा से 4, 1 और 4 5 और 9 कितना होता है 14, और फिर हमारा आता है यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे आएगा 3 और लास्ट में आएगा आपका 0, सॉरी 2 आएगा,
x इज इक्वल टू 468.16 इंटू हाउ मच 20,000। x कितना आ जाएगा 468.16 20,000 अपॉन 23408 ये आ गया। ये मैंने पॉइंट आकर जीरो बढ़ा दिया तो 2020 क्या हुआ बच्चों कट गए। प्लीज सी द वर्किंग, एनीवे इफ यू डाउट यू कैन राइट टू कमेंट बॉक्स। और फिर आप इसे कट करेंगे पूरे को तो ये आप जानते कितना आएगा, दिस विल कम ₹400। प्लीज सी, you can add this one, you can please check everything should be correct, please see it. Now after this we have to find the profit percent of the retailer। प्रॉफिट यानी कि रिटेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया। उसने क्या किया था, मार्क प्राइस को बढ़ा दिया था, फिर डिस्काउंट भी दिया, उसने कुछ ना कुछ तो फायदा कमाया होगा क्योंकि वो मार्केट में है तो अपना फायदा देख के काम करता है। तो वो फायदा निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, देखते हैं। देखो रिटेलर के आगे कौन है, कंज्यूमर, और पीछे कौन था, होलसेलर। रिटेलर ने भी डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट उसने लिया भी है, तो जो अमाउंट डिस्काउंट के बाद आता है वही कहलाता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो देखिए ये जो हमारा अमाउंट आ रहा है ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर द रिटेलर, और कॉस्ट प्राइस क्या था उसके लिए 85x अपॉन 100। प्लीज सी, तो व्हाट वी हैव टू डू for the last part, please see the second part is profit percent will be selling price minus cost price upon cost price into 100। this formula you know। तो 209x upon 200 minus 85x upon 100 ये आपका कॉस्ट प्राइस था क्योंकि रिटेलर ने W से इतने में लिया था, अपॉन 85x अपॉन 100 इंटू 100। तो ये क्या आएगा, अब देखिए यहां लेते हैं ऐसे तो आएगा 200 से आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 209x और ये आएगा 2 5 10 2 8 16 17x अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 200। ठीक है, फिर इंटू क्या हो जाएगा यहां पर 85x अपॉन 100। ठीक है बच्चों, और इंटू क्या रहेगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जब इसे सॉल्व किया तो पहले बात तो क्या हमारा ये जो है ये कट गया 0 0, तो ये कितना है, ये हमारा आया 9 और 10 में से 7 गया 3 या और ये हमारे 2 0 बचे हैं, और ये हमारा क्या बचा है 85, और x भी हमारा कट जाएगा। ठीक है ना, ये x लिख के यहाँ पे हम काट सकते हैं। ओके, और ये हमारा क्या बचा था 2, तो 2 से करेंगे तो ये 2 इंटू लिख देते हैं, तो हमारा आया 3900 अपॉन 170। अब हम इसे करेंगे, 0 कट गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसे करेंगे तो कितना आएगा 72 या 34 22.94%। This will come. This is the profit percent gained by the retailer. Okay, student. Now this way we have finished the question, and I hope you have understood. Please tell your friends, share the video, and please see the both videos. Then you will understand this chapter. Okay. और चैनल को देखते रहिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिले। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।